Hi everybody, Assalamu alaikum. So on this week's edition of the S Stories, we have Mr. Rao Zubair Khan. He is a culinary expert, an accomplished chef and... देखना मत भूलिएगा. That's right. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to yet again another edition of the S Stories right here on my official YouTube channel. आज जो है मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि आज जो है एक लिविंग लेजेंड है जी मेरे स्टूडियो में and every single time there is so much to learn from him. You know, the way that he talks, the way that he's served his country and what he's achieved all these years is absolutely fantastic. तो आज हम बात करेंगे ज़रा खाने पीने के बारे में, the hospitality industry, the culinary world, and I think I can call myself a foodie and I'll tell you why. Because when I eat, I feel that it's an experience altogether. And it is not just the food item that I'm enjoying, but it is actually the whole experience कि ये इसकी history क्या थी, इसकी background क्या थी, what does this food say about the whole place that it's explored over all these years. So I have a quotation and it goes something like this, that a recipe has no soul. You as a chef always bring soul to cooking. So ladies and gentlemen, presenting the living legend himself, Mr. Rao Zubair Khan. Assalamu alaikum, welcome to my show. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. Great. It's so amazing to have you over here. मगर अंकल की मैं ज़रा formal introduction भी कर दूँ तो let me tell you ladies and gentlemen, we have an accomplished chef, a culinary expert who started his career with Intercontinental as an executive chef, and then in the last leg he worked as a food and beverage director with Pearl Continental Hotels. तो sir, मैं सबसे पहले तो ये start करूँगी that where were you born and bred in? Let's take a look at your childhood. I was born in Hyderabad, Sindh. Really? That's interesting. My father used to work there. But basically I'm Punjabi. Okay. My village is just 40 kilometers from Lahore. Okay. It is called Handal. Nice. Okay. All right. So it's very interesting your journey because you've toured around the world also. But I want to know Rao Zubair Khan as a kid. What were his inspirations, his dreams? You know, tell me everything about that. Dream मेरी थी to become a cricketer, professional cricketer. वाकई? Yeah. मतलब कि आप खेलते थे इसका मतलब है गली क्रिकेट खेलते थे या फ्रेंड्स के साथ खेलते थे? हाँ. गुलबर्ग में हाँ. एक कैंप लगता था. अच्छा. जो सर्विस शूज कंपनी वालों का था. ठीक है. सेंट मेरी के सामने एक ग्राउंड था. ठीक है. और वहाँ पे 3 टीमें उनकी होती थी, A, B, C. ठीक है. मैं उस बी टीम में था. हाँ. रमीज राजा उसको माना गया था, वो C टीम में था. अच्छा. उनके बड़े भाई वसीम राजा, आफ्ताब गुल, नहीं A टीम में तो सारे टेस्ट प्लेयर. अच्छा, यानी कि पुराने सारे खिलाड़ी. हाँ. फिर मैं पाकिस्तान अंडर 19 का कैंप अटेंड किया. तो मुदस्सर नज़र के जो वादल थे, नज़र मोहम्मद साहब, वो हमारे कोच थे. ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा वो चेंज हो गया. ठीक. मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया गुलबर्ग में. ठीक है. मेरे पार्टनर थे फिल्म एक्टर नदीम साहब के जो सुसर हैं एहतशाम साहब. क्या बात है. हाँ. FC कॉलेज में हम पढ़ रहे थे उसमें. ठीक. और ज़ाहिर है सारा FC कॉलेज भी आता था वहाँ पे. फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग थे. शाम को नदीम साहब, उनकी वाइफ फरजाना, रॉबिन गोश, शबनम और ये सारे लोग जो भी उनके करीबी थे. और उस ज़माने में कोई पिक्चर्स नहीं थी, नहीं तो हम ज़रूर इसका फ़ायदा उठाते. हाँ. तो उस यंग एज में फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे और बाकी हमारा ग्रुप तो जो था वहाँ पे. ठीक. तो वहाँ सीखा भी बहुत कुछ. ठीक है. एहतशाम साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा. वो खाली फिल्में नहीं बनाते थे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे. सही. उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी इस पाकिस्तान में उस वक्त. फिर क्या हुआ कि गाड़ी भी मुझे एक नई मिली हुई थी, मज़दा 1500. उस वक्त उसकी कीमत थी. क्या बात है अंकल, बड़े टोड़ थे आपके उस ज़माने में. हाँ. बड़े शश के. 18,000 मेरा ख्याल है कि वो ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी मिल जाती थी. अच्छा. अच्छा. अब FC कॉलेज था, फिल्म इंडस्ट्री थी. ठीक. और गाड़ी शाड़ी भी मिली हुई थी, तो खराब होने के लिए कोई चौथी चीज नहीं थी. यानी कि पूरा आपने मामला सेट कर दिया था खराब होने के लिए. हाँ उन्होंने. हाँ. आपके क्राइम पार्टनर्स भी थे ना, जरा रोशनी डालें. हाँ. तो एक दिन फिर
मेरे फादर ने पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने कहा भाई यू आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, तुम्हारा ये खर्चा है वो खर्चा है फलाना है ढिमकाना है, मैं भी रहो वो भी रहो दोनों पागल। मैंने कहा आज के बाद खत्म। अच्छा। ना मैं आपसे पैसे लूंगा ना मैं आपसे कोई काम करूँ, ये आपकी गाड़ी ये आपका रेस्टोरेंट। और अच्छा शो डाउन हुआ। छोड़ गया। ठीक। उस जमाने में मेरे अंकल कर्नल सुल्ला वो जनरल मैनेजर थे इंटरकॉन्टिनेंटल लाहौर के, तो मैं उनकी वाइफ से मिला जा, तो मेरा इस तरह रेस्टोरेंट में आपको पता मैं चला रहा था, वो सही नहीं चला सका क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। तो मैंने ट्रेनिंग लेनी है, तो कर्नल साहब को कहा कि मुझे ट्रेनिंग दिलवाएंगे आप। ठीक है। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पढ़ाई करो जाके। मैंने कहा मैंने नहीं करनी है। खैर वो उन्होंने मेरी मदर से बात की, उन्होंने कहा ये बढ़ गया ये बाज नहीं आएगा, मुंडे तक कोई हाल नहीं है कोई हाल। खैर मैं एज ए ट्रेनिंग वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। पहली सैलरी जो मुझे मिली है ना उसकी मैं आपको खुशी नहीं बता सकता। ये बताएं अंकल, वी लव टू नो बिकॉज़ दैट वाज माय ओन इनकम। या That was 250 rupees. Okay, okay. But you were just starting out and you know उस ज़माने में तो बहुत बड़ी चीज थी। बहुत था। हाँ। फिल्में भी हम देख आते थे, डेट शीट भी मार आते थे, फिर भी 40-50 रुपए बच जाते थे। आंटी ये सुन रही है ना आप ये सारे, आई एम श्योर आपको पहले भी पता होगी ये सारी चीजें। अच्छा। तो ये पैसे बच जाते थे उसको। ठीक है। मतलब इतनी कम उसके अंदर, लेकिन 250 रुपये उसको बहुत ज़्यादा था। 6 साल मेरी दोस्तियाँ ख़त्म हो गई, राव फैमिली ने मिलना छोड़ दिया। वो ये समझते थे कि जी होटल इंडस्ट्री में दो ही चीज़ें हैं, या ये बैरा होगा या ये खानसामा होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ तो कुछ नहीं है। ठीक नहीं। तो 73 में मैंने ज्वाइन किया। 79 में आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल लाहौर। वाओ। आई यूज्ड टू लिव इन द होटल, मुझे कमरा मिला हुआ था राइट ऑन द पूल। फोन किया खाना आ गया, फोन किया गाड़ी लग गई, और पूल व्यू साथ साथ। एंड आई वाज गेटिंग 6000 सैलरी देयर। एट दैट टाइम दैट वाज क्वाइट माशाल्लाह अ लॉट। उसमें डिप्टी कमिश्नर 2-2.5 हज़ार तक, इससे ज़्यादा नहीं थी। सही है। तो फिर राव फैमिली ने देखा भाई ये तो बच्चा बड़ा कमाऊ शमाऊ है, होटल में रहता है, ठीक है, फ़ोन करे खाना आए तो गाड़ी आए, तो ये हर चीज़ को, लॉन्ड्री फ्री है, सब कुछ इसको, सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके पास। तो फिर मुझे रिश्ते आने शुरू राव फैमिली। यानी सारी चीजें देखने के बाद रिश्ते आने शुरू हुए क्या? लड़का तो अब सेट है। जाहिर है क्यों ना। तो मैंने अपने फादर को बड़ा पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। मैं आई एम सेम ब्लडी खानसामा, आई एम सेम कुक, तो अब मेरे पीछे ये क्यों आ रहा है। सो होते मेरी ट्रांसफर पेशावर। ये 80s में हुई पेशावर ट्रांसफर? 79 में आखिर में 1 साल 1.5 साल काम किया वहाँ पे। एक दिन एक सेमिनार हम अटेंड कर रहे थे होटल के अंदर ही, तो वहाँ पे खातून से तारुफ हुआ कि ये इन्होंने अभी फ्रंट ऑफिस ज्वाइन किया और ये वो सारा। ठीक है। वो जो होता है ना पहली नज़र में जिसे कहते हैं कि ये हो गया। इट वाज मेंट टू बी। तो मुझे पता लगा कि शी इज़ अ पर्शियन स्पीकिंग लेडी। यस। सो दे माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। यस। और वो भी बिफोर पार्टीशन। ठीक। तो मैंने उन्हें बताया एक सादा लफ्ज़ों में कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं कोई प्यार श्यार लव शव ये कोई बकवास, डायरेक्ट टू द पॉइंट। डायरेक्ट मैंने कहा मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। ठीक है। एंड इन फ्रंट ऑफ आई थिंक क्वाइट अ फ्यू पीपल। अंकल कोई प्राइवेसी होती है, बंदा थोड़ा कोई रोमांस कोई माहौल, हाँ डायरेक्ट लोगों के सामने। अच्छा। उन्होंने बड़ी पोलाइटली कहा मेरे माँ बाप से मिलना। ठीक है। माँ बाप से मिले और फिर तो चट मंगनी पटवया वाला सिनेरियो था कि मंगनी भी नहीं हुई और डायरेक्ट? वो इसी किस्म का था। ठीक है। लवली। माय ओनली कंडीशन वाज कि तुमने जॉब नहीं कर। ठीक है। मेरी फैमिली में आगे बढ़ा है। ओके। तुम जॉब करोगे तो और मसला हो जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है। बट शी आल्सो कुक्स वेरी वेल एंड शी हैज हर ओन स्टाइल ऑफ कुकिंग। वो ये इन लोगों में है क्योंकि उनकी एक अपनी कुजीन है बहुत बड़ी। हाँ। पर्शियन कुजीन। आप सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ पे एक ही किस्म का सारी कुजीन है। यस। और उसमें बहुत बड़ी वैरायटी। हाँ जी। बल्कि हमारी कुजीन भी उस कुजीन का एक पार्ट है। बिल्कुल है। और वो ड्राई फ्रूट भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। ड्राई नट्स का इस्तेमाल बहुत है। वो मैंने इसको मना किया। अच्छा। मगर उनका अपना टेस्ट जो मैं खाना खाऊं उसमें ड्राई नट्स, मैं कहा यार ये हम नहीं खाते ये। तो फिर मैंने इसको कढ़ाई बनाने सिखाई, करीज बनाने सिखाई। ठीक। आई लाइक शोरवा काइंड ऑफ अ थिंग। ओके। ओके। तो वो फिर इसने बनाने सीख लिए और अपनी कुजीन तो उसे आती थी। और सूप्स भी तो बहुत है उनकी कुजीन में। बहुत सूप है ना? हाँ।
और अनफॉर्चुनेटली हमारी कुजीन में सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ही सूबा है, दैट इज मल्टानी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। लेकिन इनकी कुजीन में जो हमारी कुजीन है, हाँ जी, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम काफ़ी नए नए किस्म के सूप डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जो सब कॉन्टिनेंट की कुजीन है और ये पर्शियन कुजीन को मिला के इंटरेस्टिंग, तो ये नए नए सूप, नई नई चीज़ें हम इसको बेहतर कर रहे हैं। and something different for people also. अच्छा, ladies and gentlemen, just to let you know that from there onward, जिस तरह मैंने introduction की थी उनकी शुरू में, from there on he went on doing freelance, food and beverage consultancy for well-known hotels. एंड उसके अलावा बहुत सारे इनको और भी एजाज़ हासिल हुए। ही वन लॉट्स ऑफ टाइटल्स, नॉमिनेशंस, अवार्ड्स। अच्छा, अब हम आते हैं द कुकरी प्रोग्राम के ऊपर। सो टेल अस अबाउट द कुकरी प्रोग्राम। इसका आइडिया क्या था, ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, पीपल वॉचिंग, हाउ कैन दे इनरोल देमसेल्फ इन दिस? अब एक चीज़ तो अगर लाहौर में आप देखें तो हर रोज़ कोई ना कोई कुकिंग क्लास कहीं ना कहीं हमेशा होती है। बिल्कुल। तो वो तो अब हम में और उनमें फ़र्क क्या। मेरा समहाउ हमेशा एक एतराज़ रहा है, वो टीवी पे जो हमारी ख़वातीन आके पकाती हैं वो अपने आप को शेफ़ कहती हैं, दे आर नॉट शेफ्स टू स्टार्ट। हु डू यू कॉल अ इसी शेफ? तरह जो घरों में औरतें क्लासेस ले रही हैं, ठीक, वो अपने नाम के साथ उन्होंने भी शेफ़ लिखा होता है। अब उनको ABC भी नहीं आती फूड प्रोडक्शन की, तो उन्होंने अपना साथ लगाया होता है। यानी वो अच्छी कुक जरूर हैं, मगर एक प्रोफेशनल शेफ का टाइटल जो है, इवन प्रोफेशनल किचन्स के अंदर भी शेफ का टाइटल शुरू होता है शेफ डी पार्टी से जाकर। अग्रीड। शेफ डी पार्टी से नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं वो कुक्स ही होते हैं। या तो वो टाइटल शुरू होता है शेफ डी पार्टी, जो शेफ डी पार्टी इज अ सुपरवाइजरी पोस्ट। ओके, वो ही इज अ ब्रिज बिटवीन द हायर मैनेजमेंट एंड द लोअर स्टाफ। ओके, वहाँ से शुरू होता है शेफ डी पार्टी की ठीक है, पोस्ट। ठीक है। फिर उससे ऊपर आप तरक्की करते करते जाते हैं, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं, एंड देयर आर फ्यू पीपल जो शेफ डी कुजीन भी बने। राइट, मतलब कि वो कुजीन का उनको क्या है, दी मास्टर। वंडरफुल। सो ये अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इसको मजाक बना लिया लोगों ने। इट इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। फूड प्रोडक्शन जो है, अब आप सुन के परेशान हो गए कि ईच सेक्शन ऑफ किचन यू कैन डू PhD। वाओ। आप बुचरी में PhD कर सकते हो, आप कॉन्टिनेंटल किचन में PhD कर सकते हो। तो ये इतनी वास्ट सब्जेक्ट है। जिस तरह आप डॉक्टर जब होते हो तो आप एक अर्न करते हो डिग्री, या पढ़ाई करते हो, फिर आप अर्न करते हो टाइटल। सेम गोज फॉर अ शेफ। यू कैन बी अ गुड कुक बट नॉट अ प्रोफेशनल शेफ। फूड प्रोडक्शन को ये बेसिकली इट्स अ 5 वीक कोर्स। ठीक है, ठीक है ना। इसमें हमने 5 उसमें हमने इसको तकसीम कर। क्या कुजीन्स है अंकल, जरा बताएं हमें। सूप सैलेड सैंडविचेस का है। 1 वीक हमने किया। वेस्टर्न एंड फ्रेंच भी बेसिकली वेस्टर्न ही है, लेकिन फ्रेंच कुजीन को थोड़ा सा अलग हम कर देते हैं। फिर बाकी वेस्टर्न कुजीन जो है उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पाकिस्तानी और मुगलाई भी है आपके पास? पाकिस्तानी मुगलाई भी है, थाई एंड चाइनीज भी है, और बेकरी और कन्फेक्शनरी भी, ताकि सारे वो चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है। अब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब कि 5 वीक्स में आप इस पूरे चीज़ को समराइज करें फूड प्रोडक्शन को, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, आई जस्ट लाइक टू प्लग इन समथिंग है। तो ये है जी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, दोपहर 12 से 3 या शाम 5:30 से 8:30, और ये स्टूडियो में हो रहा है, और ये 5 हफ्ते का है। 5 हफ्ते का है, और आप वीकली भी कर सकते हैं। वीकली भी कर सकते मतलब अगर आपने खाली सूप सैलेड सैंडविचेस करना है, हाँ, तो आप 1 हफ्ते का कोर्स या पाकिस्तानी कुजीन करनी है, पाकिस्तानी कुजीन करनी है तो वो आप 1 हफ्ते का ठीक करना है। है। अगर आपने बेकरी और कन्फेक्शनरी का करना है वो हाँ, 1 हफ्ते का। बिल्कुल। 5 हफ्ते में आपको यू गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट अगर आप पूरा कोर्स करते हो। ठीक है। इट इज अराउंड अबाउट 30,000 Okay. between 25 to 30,000। ऑलराइट, ओके। तो वो एक था कि भी अगर आपने पूरा कोर्स करना है तो आपको इतना ठीक है, फ़ायदा हो जाएगा, उसके Perfect, इतना perfect। वो हो जाएगा। अब जब हम इसको प्लान कर रहे थे तो हमने देखा कि लाहौर में इधर इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हाँ जी। तो डिफरेंट हमने क्लासेस देखी, उनके प्रोग्राम्स देखे, उनके सब्जेक्ट्स देखे। अच्छा, आप बुर्का पहन के तो नहीं गए हुए थे दरमियान में? हाँ, स्टडी करने के? क्या नहीं, चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है अंकल? सारी स्टॉक करने तो नहीं सबके गए? अपने पेज बने हुए हैं, एवरीथिंग इज हाँ देयर, जी। तो हम वहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक, देख ठीक। लेते नहीं, हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी हैं आजकल तो ऑनलाइन। फिर हम जो 5-6 सीनियर शेफ्स हैं, तारिक अमीन है हमारे, अंजुम जावेद साहब हैं, वो भी मेरे घर आए। हमने कहा यार इस तरह एक कोर्स हमने डिज़ाइन करना है कोई 5 वीक्स का। तो बेसिकली इट्स अ कस्टमाइज culinary कुकिंग प्रोग्राम।
for home bakers, for young girls, housewives, people who are interested in enhancing their culinary skills. अच्छा अंकल, एक चीज़ मुझे बताएं, फर्स्ट करें अगर मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार मैंने तो ज़रूर आना है, तो बाय द एंड ऑफ इट एक तो मुझे स्किल हासिल होगा, कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं जो मुझे हासिल होंगी? इस पर्टिकुलर जो कोर्स है ये वाला, इसमें हम 3 चीज़ों पे एम्फसाइज करें। ठीक है। पहला ये है कि उसकी बेसिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बेसिक्स पढ़ाने पे आ जाएं क्लासरूम के अंदर, इट कैन टेक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। श्योर। वो फिर भी ख़त्म नहीं होगा पढ़ाना हमारा। ठीक। तो हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि उनको बेसिक सूप्स का पता हो, ठीक है, उनको बेसिक स्टॉक्स का पता हो, उन्हें बेसिक सॉसों का पता हो, उन्हें बेसिक इंग्रेडिएंट्स का पता हो, the ABC of it all, उन्हें बेसिक मेथड्स ऑफ कुकिंग का पता हो, ताकि वो कोई चीज़ डेवलप कर सके, बना सके। पहला हमारा था पॉइंट कि उनको बेसिक्स आने चाहिए। स्किल्स, और आप स्किल्स उनकी डेवलप कर रहे हैं ना, एनहांस कर रहे हैं। जी है ना। अब सेकंड जो इसका पॉइंट था वो ये था कि आपने जो खाना बनाया उसको प्रेजेंट किस तरह। ठीक है। देखिए, एक क्वालिटी ऑफ फूड है Yes. और एक उसकी प्रेजेंटेशन है। हाँ, नंबर 50-50 है दोनों। हाँ, बिल्कुल। अगर इधर नंबर कम है फिर भी गड़बड़ है, इधर नंबर कम है फिर भी गड़बड़। अच्छा, वो मेरी फूड एंड न्यूट्रिशन की और क्लास टीचर presentation भी ये में कहती थी। सबसे पहले इंसान की आंख खाती है, ठीक। क्योंकि आप आंख से देख रहे होते हैं। अगर आपको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी, वो बेशक वो बेहतरीन खाना बना हो, तो आप कहेंगे नहीं यार। तो प्रेजेंटेशन के भी उतने नंबर हैं। बिल्कुल। आपने फूड को प्रेजेंट किस तरह का। बिल्कुल सही है। अब उसमें हमने क्या सिखाना उनको, जो प्रेजेंटेशन है, कोई भी खाना आप बना रहे हो उसके 3 असूल होते हैं। ठीक है। उसकी बेस क्या होगी, बेस में आप कौन सा पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। यस। आप प्लेट में दे रहे हैं, आप किसी प्लेटर के अंदर दे रहे हैं, या आप कोई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्विंग करके उसके अंदर चीज़ दे रहे हैं। तो पहले उसकी बेस है जो आपने, फिर बॉडी, द डिश इटसेल्फ, राइट, ठीक। उसके बाद उसकी गार्निशिंग। ठीक है। ये 3 चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर देना है प्रेजेंटेशन के अंदर। सही है। कि ये इनको आना चाहिए, बजाय कि हम उन्हें पूरा सिखा रहे हो, जो कि 5 हफ्तों में मुश्किल है। बिल्कुल सही है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ ये है कि प्रोड्यूसिंग क्वालिटी फूड विद अ लिमिटेड बजट। ओके। तो इन 3 पॉइंट्स को ज़हन में रख के हमने ये कस्टमाइज culinary कुकिंग प्रोग्राम। जबरदस्त। और इसका सर्टिफिकेट भी इनको ऑब्वियसली एंड पर मिलेगा। ऑब्वियसली Yes. जो हमारी एकेडमी है, culinary academy ऑफ पाकिस्तान, उसका सर्टिफिकेट है। तो अंकल, लेट्स टॉक अबाउट द culinary academy ऑफ पाकिस्तान एज वेल। थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं हमें, द विजन, बिफोर वी से गुड बाय टू यू। culinary का पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्ट हुआ, वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक। क्योंकि पहले डिशें बनती थी, लेकिन culinary का वो जो टच है वो नहीं था। सही है। आज से कोई 12-13 साल पहले फिर हमने उसकी बुनियाद रखी, शेफ्स एसोसिएशन पाकिस्तान। सारे सीनियर मेंबर्स, सीनियर शेफ्स, जूनियर शेफ्स उसके मेंबर बने। वहाँ से हमने छोटे छोटे कंपटीशन शुरू किए पाकिस्तान लेवल के ऊपर, culinary आर्ट के, कि एक डिश को आपने किस तरह पेश करना। जबरदस्त। और वो ज़हन में रख के जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस थे उसके, कि जब ये बाहर जाएंगे बच्चे कंपटीशंस में हिस्सा लेंगे, तो इन्हें ऑलरेडी पता हो यहाँ पे। अब उसमें 2 नाम हमारे बहुत बड़े नाम हैं। एक रईस है जो हमारे शेफ हैं जी, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, और एक प्रकाश है। ठीक है। इन दोनों ने पाकिस्तान का झंडा आसमान पे पहुंचा। बिल्कुल। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपटीशन जीते बाहर। ठीक। फिर जब हमने पाकिस्तान की टीम बनाई, तो हमने इन दोनों को कहा ये पाकिस्तान आ गए बेचारे। इन्होंने पाकिस्तान आ गए हमारे टीम्स को ट्रेंड किया, फिर ये उन टीम्स के साथ बाहर गए, और फर्स्ट टाइम जब हमारी टीम बाहर गई तो हमने 16 गोल्ड मेडल जीते। वाओ, माशाल्लाह। जिसमें से 6 हमारी लड़कियों ने गोल्ड मेडल। एग्जैक्टली, मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी। अब ये काम हमारा सर प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए इसे पैटर्नाइज करे, और आपके मुल्क के लिए मेडल्स लेके आ रहे हो, अपने लिए नहीं ला। बिल्कुल। लेकिन आज तक किसी बंदे ने इनको बुलाया भी नहीं है कि भाई ये भी टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीते तो वो आसमानों पे। और पाकिस्तान की culinary टीम 16 गोल्ड मेडल जीत के आ रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से
वो शायद एक अदद कोई न्यूज़ लग जाए किसी मैगजीन के ऊपर एक अदद दिन के लिए, उसके बाद पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट. सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर कंसिस्टेंट विद इट. अच्छा, अंकल के बहुत सारे और भी ऑनर्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल चीफ पेट्रन ऑफ शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, you know, and the senior judge at acclaimed food competitions as well. But थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो जाते जाते अच्छा सर हमें ये बताइए, for all the aspiring chefs in Pakistan watching this, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके pearls of wisdom है? They should be honest with their work to start. Absolutely. दूसरा, उनका पैशन होना चाहिए. अगर उनका पैशन नहीं है, ये छोड़ दें, कोई और काम करें. हाँ, और ये नहीं कि छोटी सी अगर फेलियर देखा लाइफ में तो आपका अच्छा जी बस खुदा हाफिज, कीप गोइंग. नहीं, इसमें फूड के अंदर तो आप खाली सैलरी के लिए काम नहीं कर सकते. हाँ जी, आपका शौक होना चाहिए. अग्रीड. अगर आपका प्यार होना चाहिए खाने के साथ. जब तक ये 2-3 चीज़ें नहीं है, पैशन नहीं है, आप प्यार नहीं करते खाने के साथ, तो आपको ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए. बिल्कुल. आपको कोई और काम करना चाहिए. आप ये काम नहीं कर सकते. Field of passion. Absolutely, I agree. Thank you so much, sir. It was such a pleasure to have you over, and you are a living legend. और इतना कुछ सीखने को मिला, और इंशाल्लाह आगे आपकी जो द कुकरी प्रोग्राम है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं तो सीक्रेटली जो है ना उनको ऑब्जर्व कर रही होंगी ज़रा साइड से, कि कभी मुझे भी मौका मिले मैं एक लिविंग लेजेंड को देख रही हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. हमारे शेफ्स पता क्या कह रहे हैं जी, वो दे आर वेरी थ्रिल्ड अबाउट दिस क्लासेस. या वो कह रहे हैं कि वी आर कमिंग and Lovely. we will spice up your classes. Oh, fantastic. And हम आपको थोड़ा सा glimpse देने लगे in the future. There are many more, inshallah, interesting things to come as well. Perhaps a book that we are going to be launching soon. Perhaps a competition. ये तो हमें जुबैर अंकल बताएंगे ना जाते जाते. कुछ ना कुछ ज़रा हल्की सी उनको बता देना कि what's to come in the future. Future, I am working on 5 books. Okay. उनमें there are 3 professional books. Alright. And 2 recipe books. Recipe books एक तो soup salad sandwiches पे है. ठीक. और एक मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर the art of Pakistani cuisine. Right. अब Indian claims that this is their cuisine. Sure. सब्जियाँ खाने वाले, दाने खाने वाले, वो किस तरह कह सकते हैं कि ये हमारी कुजीन. Okay. ये कुजीन शुरू हुई जब मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली कैप्चर किया इन अर्ली 16th सेंचुरी. ठीक है. वो सारी चीज़ें लेके आए, वहाँ से लोगों ने गोश्त खाना शुरू किया. इट्स अ मुस्लिम कुजीन. वी आर मुस्लिम, इट्स आवर कुजीन, इट्स नॉट योर कुजीन. ओके. हमसे गलती ये हुई, हमने इसको प्रेजेंट नहीं किया एक प्रोफेशनल तरीके से. इंडियंस ने किया. हाँ, वो ओनरशिप नहीं ली ना उस अब चीज़ हम की. वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लोग इंडियन कुजीन को भूल जाएंगे और पाकिस्तानी कुजीन को याद करेंगे. Whoopsie daisy, this is something he has in mind. Thank you so very much, sir. It was such a pleasure, and inshallah looking forward to a fantastic time with you. All right, everybody, thank you so much for watching this edition of the S Stories on my official YouTube channel. बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, मगर एक चीज़ तो तय है, टिकर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा the cookery program details, when, where, how can you enroll yourself in the program and get the benefit of somebody who is a culinary expert and an accomplished chef in Pakistan. तो जाते जाते मैं ये कहूँगी that good food is a good mood. So make hay while the sun shines, get enrolled in the cookery program, and catch you guys inshallah next week. Take care, eat well.